Hi everyone, welcome to I Just React and Review. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And I will be reacting to the lyric breakdown of Untitled by Krishna because I've already reacted to Untitled, and at that point of time I didn't know the actual sequence. So I reacted to Untitled and then after that I reacted to Happy Diwala along with the breakdown. And उस वीडियो में मैंने बोला था कि I will watch the Untitled breakdown on my own, but then I read the comments and you guys said that please react to it. And yeah, which makes sense because at least you will know my thoughts after watching this. And if I don't get anything, I can immediately ask and you can reply in the comments. So yeah, I don't want to delay this any further because it's quite a long video. It's like a 20-minute video. And yes, let's react to this. Okay. Of course, from Rohan's channel only. That's the go-to channel for the lyric breakdown. So yeah, let us begin. Really excited. Okay. हेलो नमस्ते पैरी बोना बाय लागू। मेरा नाम है रोहन कारियप्पा एंड आज होने वाला है कृष्णा की सब्लिमिनल ट्रैक अनटाइटल्ड का ब्रेकडाउन। इट्स हिज फोर्थ डिस ट्रैक इन अ रो एंड द क्वालिटी डज नॉट सीम टू बी ड्रॉपिंग। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस ट्रैक आई कैन कंक्लूड दैट देयर आर टू रैपर्स इन देसी हिप हॉप जिसके साथ आपको कभी भी बीफ नहीं करनी चाहिए। एंड दीज टू रैपर अकॉर्डिंग टू मी आर कृष्णा एंड तलहा यूनिस बिकॉज ऑल दी अदर रैपर्स आर नाइस पीपल फ्रॉम इनसाइड। जैसे रफ्तार और एमबीवे की जब बीफ होती है तो वो लाइव वीडियो में बहुत पीसफुली बात करके उसको खत्म कर देते हैं। एंड दे आर नो मोर एंग्री ऑन ईच अदर, एटलीस्ट दे डोंट हैव एनी इश्यूज दैट दे शो ऑनलाइन। साथ ही साथ मुफार जब डिस करता है तो वो ऑफलाइन बोल भी देता है कि आई हैड प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने ट्रैक में बोल दिया, दिल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन आर्टिस्ट के साथ। बट जब कृष्णा एंड तलहा यूनिस डिस करते हैं या किसी के साथ बीफ करते हैं, they will just keep kicking you down and if you die they'll keep kicking your corpse. For example, Talha Yunus made a 50-second diss track and performed it on his Insta stories. कौन सा महल तुम किराएदार जो कर्ज में, बाप बीमार तेरा तभी खाया कर्ज पे, राइम स्कीम तक बदली नहीं मैंने अपने वर्ष में, सेनो टू चेस्ट में लौट गए भाई झांटे, अपनी वो राइम वाली नोटबुक ले गांड में पे मेरा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर चैन के उनके सामने आ गए तो उसको मारेंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे एंड उसको यूट्यूब पे डाल के उसको मोनेटाइज भी करेंगे। Same goes with Krishna and how he's been unapologetic on his Insta stories about whatever song ME is posting. Now, इससे पहले हम breakdown की तरफ बढ़े, let's talk about a few things worth noticing in this track. धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोड़ जोरी से दादर है शोर। Number one, if you switch on the subtitles, इस गाने का English translation आपको मिलेगा, which is again rhyming properly. So just imagine the time जो उसके सबटाइटल्स को लिखने में गया, लेट अलोन द टाइम जो इस रैप को लिख के शूट करने में गया होगा। बाइक जैसे कान में कादर है बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है पागल है। Number two, before this track was released, Krishna posted on his stories and posts saying that he is not going to be dissing anyone right now and this is time for peace and stuff like that. And then ये वाले पोस्ट में अगर आप कैपिटल लेटर्स को सेपरेट कर दो तो वो बनेगा a word called diss, D-I-S-S. What a nice subliminal message. This is the level of subliminal message that Krishna conveys. By the way, thank you so much @Lippy_2203 for bringing this to attention. And I have a theory of why Krishna was posing it to be a song about his struggle and not a diss track. And my theory is कि जब मुफाड़ ने अपना हैप्पी दिवाला रावण निकाला था, he posed it to be a dance number and not is not a diss song, it's a dance song. Only positive ones can dance. Okay, rest are helplessly offended. अच्छा, okay. A diss track. उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी ये शेयर किया था and I think Krishna wanted to retaliate in the same way and that's why he positioned this diss track as a song about his struggle. भंडों के सारे करो हाई फाइव, कोई ज्यादा बोले उसको बोलो मुंह में लोगे मेरा वाईफाई। Number three, Krishna uses the flow of his opponent and disses them in the same flow. इसका elaboration आपको breakdown में मैं आपको दे दूंगा. So without wasting any further time, let's jump right into the breakdown. 14 साल मेरी उम्र थी हाँ, पता चला मेरी लिखाई में हुनर थी हाँ, इतनी बार मेरे सपनों को कुचल दिया पर गानों से जलाई मैंने कुछ अर्थियां। Krishna starting off slow. He's talking about his struggle जो उन्होंने actually Instagram पे claim किया था this song is going to be about. He talks about how he started rapping at the age of 14, how he failed multiple times and how उनके गानों से उन्होंने अर्थियां जलाई यानी रैपर्स को खत्म किया है। हसल किया मैंने काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर आज ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम और सलाम नहीं ठोका। ये लास्ट के 4 बार्स काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वी आर स्टिल एट द स्ट्रगल पार्ट राइट नाउ, बट वेट,
These simple lines have a 5-syllable rhyme in it. आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे the rhyme scheme of these bars. And हाँ, सबर करो, डिस अभी आने वाला है आगे. I want to go back and just check that thing out. जरूरत नहीं है. We are still at the struggle part right now, but wait. These समझो simple तो deeply lines समझो ना. have काम नहीं रोका, काम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, काम और सलाम नहीं ठोका. ओके. a 5-syllable rhyme in it. आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे the rhyme scheme of these bars. And हाँ, सबर करो, डिस अभी आने वाला है आगे. मैं तो कभी डरा नहीं बीच से, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे. This part was a diss to Beard Gang, जिन्होंने कुछ 8 disses निकाले थे बैक टू बैक कृष्णा के ऊपर. अच्छा. While Krishna I know was who dissing Beard Gang MEV. is. कभी मैं भागा नहीं बीच से, कभी हटा नहीं पीछे से कृष्णा का मतलब है कि जब Beard Gang ने अपने गानों में कृष्णा को मारने पीटने की बात करी थी तो कृष्णा was up for it and texted insane to meet. इस बीफ के ऊपर मैंने अपने चैनल पर भी एक डिस्कशन वीडियो डाली है, so you can check it out as well. ये बोले ये लाएंगे गैंग, मैं बोलूं भाई लांदो जैसे एनरिके. गैंग रिफर्स टू बियर्ड गैंग, Okay. जिन्होंने जैसे मैंने आपको बताया 8 डिसेस निकाले थे बैक टू बैक कृष्णा के ऊपर. मैंने बोला भाई लांदो का हिंदी मतलब होता है कि हाँ तुम अपना गैंग लेकर आना चाहते हो ना, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लाने दो उनको अपना गैंग. Okay. एंड ऑल्सो बाइलांदो इज अ सॉन्ग जिसके सिंगर थे एनरिके. हेंस मैं बोला बाइलांदो जैसे एनरिके. अमेजिंग. सुनी मैंने भी लोगों की बकवास, वो जो करे 10 बात पर कभी ना सच बात. 10 बात could again be a reference to 8 different diss tracks जो बियर्ड गैंग ने निकाले कृष्णा के अगेंस्ट. पर अपेरेंटली उन गानों में बियर्ड गैंग ने सच नहीं बताया. जाता था मैं स्कूल हाँ लेके बस पास, अब जहाज में भी बैठू कभी कभी फर्स्ट क्लास. दिस इज अगेन प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसमें कृष्णा बता रहे कि वो पहले किस लेवल पे थे एंड नाउ वो आज कहाँ पे पहुंच चुके हैं. जज्बात रखे काबू में हाँ, जब मेरे गाने चलाए नी डीजे वाले बाबू ने हाँ. कृष्णा टॉकिंग अबाउट हाउ ही फेल्ट डीमोटिवेटेड जब क्लब्स में कृष्णा के गाने नहीं बजते थे. गुड़गावा कट्टा बाजू में हाँ. कट्टा इज अ देसी हैंडमेड गन जो हरियाणा में बहुत ज्यादा बिकती है. एंड गुड़गांव जहाँ कृष्णा रहते हैं फॉल्स इन हरियाणा. गुड़गावा कट्टा बाजू में हाँ, थोड़े समझना आवे ताड़े मारू में क्या. तने मारू में क्या इज अ Hariyanvi हरियाणवी सेंटेंस विच मीन्स मेरे पास कट्टा है एंड मैं तेरे को कट्टे से मारूंगा. करेक्ट. साथ ही साथ तुझे समझना है ताने यानी टॉन्ट मारू में क्या, विच मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड माई टॉन्ट्स. मेरे ताने इतने हाई लेवल के होते हैं दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड. ताने इज अ वर्ड प्ले हियर विच इज ब्रिलियंट, अमेजिंग. अंडरग्राउंड जैसे जानू में हाँ. अंडरग्राउंड हिप हॉप मतलब होता है इंडिपेंडेंट या नॉन कमर्शियल हिप हॉप म्यूजिक. एंड देन ही कंपेयर्स इट टू जहन्नम विच इज पाताल लोक. बहुत सारी माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि जो पाताल लोक होता है ना वो जमीन के नीचे होता है. तो अंडरग्राउंड जैसे जहन्नम. बहुत सही यार. में हाँ मैंने दे दिए ने मौत जैसे कानून है हाँ. कृष्णा अनाउंसेस डेथ सेंटेंसेस टू रैपर्स जैसे वही लॉ या कानून है. और करी मैंने मेहनत करी मैंने ग्राइंड अप किया डॉलर साइन तुझे मालूम है ना. कृष्णा ने अपने करियर में इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि आज $$ सबको मालूम है, यानी ही रोज टू फेम. साथ ही साथ $$ मालूम है ना brings us to the second person who he has dissed in this track and that is yes MEV बंटा है. बट इसके आगे वाला जो वर्स आने वाला है that is not directed towards MEV बंटा है, that is directed towards a different rapper. परेशानी हुई इन्हें मुझे देख के, सोचा नहीं इतने लोग भी यहाँ फेक थे. तो इन लाइंस को कृष्णा ने मूफाड़ की तरफ डायरेक्ट किया है. मूफाड़ इन हिज इंटरव्यू विद राज जोन्स स्पोक अबाउट कृष्णा. उन्होंने बोला कि कृष्णा के ट्रैक्स मस्त थे जो डिस ट्रैक्स उन्होंने एमिवे बंटाई के खिलाफ निकाले थे, बट कृष्णा डिस्ड एमिवे जस्ट फॉर व्यूज. तो इन लाइंस में कृष्णा कह रहे हैं कि मुझे ग्रो होता ये वाला देखकर जो रीजन है ना, लाइक दिस आई रेड इन because when I was reading up about this MEV versus Krishna thing, I went to Quora also, read couple of articles also. तो काफी लोग मतलब mixed opinions थे, but yes, this was another point that people were saying that probably he did it for views. So yeah, that's something that I लोगों also को read. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. अब देख के करेंगे मुझे हेट, ये पर देता नहीं फक जैसे बंदी पहले डेट पे. देता नहीं फक का मतलब होता है आई डोंट केयर. मुझे हेट करेंगे लोग बट आई डोंट केयर. बट देता नहीं फक जैसे बंदी फर्स्ट डेट पर मेक्स देता नहीं फक अ डबल ऑन्टॉन्ड्रे, क्योंकि एक लड़की आपको फर्स्ट डेट पर यू नो I know. डेट पे हेडस्ट्रॉन्ग मेरा विल नहीं तोड़ा. हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी. एंड कृष्णा की जो रैपिंग करने की विल या चाह है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसको कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया है. विल नहीं तोड़ा मैंने चिल में जलाई, कोई मिला नहीं बोला हाँ. वॉट अ लाइन. मैंने चिलम जलाई मतलब आई स्मोक्ड वीड. कोई मिला नहीं भोला मतलब नो वन इज इनोसेंट इन दिस गेम. साथ ही साथ चिलम इज एसोसिएटेड टू लॉर्ड शिवा जिनका दूसरा नाम क्या है एग्जैक्टली भोले. क्रेजी लाइन. कृष्णा कभी किल नहीं होगा. कृष्णा कभी किल नहीं होगा. जस्ट रिमेंबर दिस लाइन.
होल्ड दिस थॉट, इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ सेकंड्स के बाद। नहीं होगा ये मैरिड टू द गेम, उसका दिल नहीं तोड़ा। मैरिड टू द गेम का मतलब होता है जो चीज आप कर रहे हो उससे पूरी शिद्दत, पूरी डेडिकेशन और पूरे पैशन से करना। साथ ही साथ कृष्णा ने गेम को इस कॉन्टेक्स्ट में हिप हॉप जो उनका गेम है उसको पर्सोनिफाई किया है और बोला है कि आई एम मैरिड टू द गेम एंड मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। ट्रिप अलग माल में फर्क, नच बलिए तूने देखी अभी झलक। पर्सोनिफिकेशन इज अनदर टर्मिनोलॉजी व्हिच मींस जब आप एक नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हो एंड देन उसके बारे में बात करते हो। जैसे इस सेंटेंस में गेम यानी हिप हॉप को कृष्णा ने एक गर्लफ्रेंड की तरह पर्सोनिफाई किया है। मतलब अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से शादी ना करो तो उनका दिल टूट जाएगा। सिमिलरली कृष्णा मैरिड टू द गेम एंड अपने गेम का दिल नहीं तोड़ा। I swear, मैं गहरी नींद नहीं सोया, मैंने रखा विश्वास, अपना दीन नहीं खोया। I swear, अब हम वापस जाएंगे उस लाइन पर जिसमें उन्होंने बोला कृष्णा कभी किल नहीं होगा कृष्णा कभी किल नहीं होगा। एंड लेटर ही सेड कि मैं गहरी नींद नहीं सोया। I swear, मैं गहरी नींद नहीं सोया। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी कृष्णा डाइड व्हाइल ही वाज अस्लीप। वो किसी जंगल में सो रहे थे एंड उन्हें एक जर नामक शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिए थे। मैंने रखा विश्वास, अपना दीन नहीं खोया। I swear, दीन का मतलब होता है दया या फॉरगिवनेस का भाव। लॉर्ड कृष्णा बिफोर डाइंग फॉरगिव जर जिन्होंने उन पे गलती से बाण चला दिया था। हियर कृष्णा ऑल्सो सेज कि उन्होंने भी रिलेंटलेसली मेहनत करी है विदाउट स्लीपिंग एंड उन्होंने भी अपना दीन कभी नहीं खोया। दिस पार्ट ऑफ द रैप इज प्योर जीनियस एंड हेंस बिकम्स द फर्स्ट हिंदी बार्स ऑन दिस चैनल to receive 3 tings in the most genius way possible. इन्हें चाहिए उस पेड़ का फल जिस पेड़ का And I सालों ने just कभी। say, the way he connected the mythology part with his rap is just fabulous. I mean, teen things तो great. मतलब Rohan is much more like well equipped to, of course, break down and understand the lyrics because he has been following Desi hip hop scene for a long time, so he definitely understands it. But for a newbie like me also to just realize that, oh my god, this is the kind of wordplay that he did and this was the bar, that's fabulous. Krishna and lyrically is just on another level, I feel. नहीं बोया। I swear, This line is dedicated to Mufad, claiming that वो कलमकार के साथ associated होना चाहते थे लेकिन उन्होंने आज तक कलमकार के लिए कुछ किया ही नहीं। That's why कृष्णा is saying कि वो उस पेड़ का फल चाहते थे जिस पेड़ का बीज उन्होंने बोया ही नहीं। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते। सुना मुझसे ये वॉर चाहते मतलब I heard they want to fight. Also हिंदी में वार means attack या प्रहार करना। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते, बात कर लोडू कभी घर से तू बाहर आके। मुफाड़ का इंटरव्यू जो था राज जोन्स के साथ वो हुआ था मुफाड़ के घर पर। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इफ यू वांट मी टू अटैक यू, अगर आप चाहते हो कि मैं आप पे वार करूं तो कभी घर से बाहर तो निकल। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। जनरली रफ्तार एड्रेसेस कलमकार एज हिज परिवार। तो इसमें कृष्णा कह रहे हैं कि मुफाड़ की जली है कि वो कलमकार का पार्ट नहीं बन पाए। रफ्तार ने उनको कलमकार में ऐड नहीं किया एंड उनको हासिल पे भी नहीं बुलाया। एंड देन कृष्णा मेक्स फन ऑफ मुफाड़्स हेयर स्टाइल जो उन्होंने हैप्पी दिवाला रावण में बनाए हुए थे। ऑल्सो डू यू रिमेंबर हाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेक डाउन मैंने बोला था कि कृष्णा अपने ओपोनेंट के फ्लो में ही उनको डिस करते हैं। हियर्स द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ये था मुफाड़ का फ्लो। पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले इन्हें की फुकती मुझसे इन्हें बोलो मां की कसम खा ले हराम के हजम मुझे होते नहीं वाले महाराज हिंदी में एक बाकी नकल सारे हसल वाले। एंड दिस वाज द फ्लो ऑफ द वर्स ही गॉट डिस्ड इन। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते, बात कर लोडू कभी घर से तू बाहर आके। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। डू यू थिंक इट इज सिमिलर? आई पर्सनली थिंक सो। महाराज हिंदी एक और बार सुना है, एक और बार सुनता है। हैप्पी दिवाला रावण में बनाए हुए थे। ऑल्सो डू यू रिमेंबर हाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेक डाउन मैंने बोला था कि कृष्णा अपने ओपोनेंट के फ्लो में ही उनको डिस करते हैं। हियर्स द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दैट। ये था मुफाड़ का फ्लो। पुलिंग या स्त्रीलिंग की नस्ल वाले इन्हें की फुकती मुझसे इन्हें बोलो मां की कसम खा ले हराम के हजम मुझे होते नहीं वाले महाराज हिंदी में एक बाकी नकल सारे हसल वाले। एंड दिस वाज द फ्लो ऑफ द वर्स ही गॉट डिस्ड इन। सुना मैंने मुझसे ये वार चाहते, बात कर लोडू कभी घर से तू बाहर आके। इनकी जली बनना पाए परिवार वाले, सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। I wouldn't say exactly उसी flow में क्या, but it's similar. I would say it's similar. What do you guys think? It is similar. I wouldn't say exact copy. I personally think so. Little महाराज similar. हिंदी में एक बाकी नकल सारे हसल वाले। सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले। Too good. मेरी तरफ भेज सब ना, 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 ना। पर बात करूं तेरा सब मैं। मेरी तरफ भेज सब यानी सबलिमिनल डिस। मुफाड़ ने अपने हैप्पी दिवाला डिस में कृष्णा को भी सबलिमिनली डिस किया था।
सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन, एक तरफ तू एक तरफ मैं महाराज ने उधेड़ दिया, सुबह होगी हेडलाइन। कृष्णा कह रहे हैं कि तू अगर मेरी तरफ सबलिमिनल डिस भेजेगा तो मैं तेरा सब यानी एवरीथिंग एंड सब यानी सब्सक्राइबर्स काउंट बर्बाद कर दूंगा। मैं कोई लड़का नहीं हल्का, मैं लड़का नहीं कल का, मैं लड़का जो पड़ा भारी 12 वर्ष से। कृष्णा इज वार्निंग मुफाट सेइंग कि वो 12 साल से सीन में हैं तो इनको हल्के में मत लो। देखो 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 भागे डर से, देखो 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 आंखें तर से, जब 2009 में कर रहा था क्लब शो में, तब तो बताओ भाई आप किधर थे। Here Krishna talks about doing live shows since 2009 and then वो मुफाट से पूछ रहे हैं कि उस टाइम मुफाट क्या कर रहे थे। Every time anyone says 2009 and rap in the same sentence, it reminds me of a very popular Pakistani rap duo. कमेंट करके बता सकते हो किसकी बात चल रही है यहाँ पे? कौन है? मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला, रैपिंग का तूने हक गवा डाला, मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। Yet another example of dissing your opponent using their own flow. MEV के ट्रैक खत्म में एक पार्ट था में भिड़ायला एक टच चाला, अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला, तेरे जैसे चले को सिंग ना डाला, हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला। and Krishna here uses this that is very same same. flow to diss Yes. MEV. मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा। ये एकदम सेम है. This flow is exactly like what anyways that verse was. This is exactly same. जो मुफाड़ और कृष्णा वाला था, that is similar. I wouldn't say it was exactly same, at least to my ears. एक दो और बार सुनूंगी तो समझ आएगा. But ये तो clearly it is same. डाला रैपिंग का तूने हक गवा डाला, Yes. मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। And this is not the first time that he has pulled it off. क्या लगा जो भी तेरे पीछे भगा उसे मैंने बोला फट फट रुकने को, फट फट रुकने को। तुझे फट फट झुकने को, फट फट झुकने को, फट फट झुकने को। ये गाना तो बस मैं ही वो जिसने सब जला डाला, कब्रिस्तान में तेरा मकबरा डाला, रैपिंग का तूने हक गवा डाला। Krishna claims that he is the one who ended MEV. एंड उन डिसेस के बाद MEV ने अपने आप को रैपर या बीफ रैपर बोलने का हक जो था वो गवा दिया है। अच्छा. डाला मैंने हिंदुस्तान में फिर से बस बना डाला। यानी कृष्णा ही लेकर आए रैप को ट्रेंड पे। ये कहाँ सुना है मैंने? हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला, हिप हॉप में आ रहा था भग भगा। Again using MEV's line हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला on himself. हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला। Wow, amazing. में आ रहा था भग भगा डाला, YouTube को मैंने पॉन हब बना डाला। देख कौन आया वापस अब, छोटे कलम करना जाया कागज अब। देख कौन आया वापस कृष्णा के गाने का नाम है जो उन्होंने 2-2.5 साल पहले रिलीज किया Okay, था। okay. देख कौन आया वापस, it's time for the show। देख कौन आया वापस, you ready to react to this? Also he moves on and asks MEV to stop writing because MEV apparently is just wasting paper by writing lyrics on them. मेरे जैसे बनना पाया गायक, जलाया पाया जैसे लाया राइट अब, why you quiet, talk a little bit more। Here is a mandatory 5-syllable rhyme yet again. Krishna जरा पॉज करके, आया वापस अब, करना जाया कागज अब, पढ़ना पाया गायक, जलाया फायर, लाया राइट अब, व्हाई क्वाइट टॉक। has made it a habit to include these multis in his songs. मेरे जैसे बनना पाया गायक, जलाया पाया। Jalaya fire is just 2 words, but just look at the depth of it. Okay. Jalaya fire simply means I set the fire. It also means Jal Laya fire, yani water brought fire, which is an oxymoronic phrase. साफ करूं कानों को, रैपिंग की बाई हूं, फुटपाथ पे गाड़ी चला दूं मैं भाई हूं। Now, what is an oxymoron? It is a combination of 2 words that are opposite to each other. For example, अगर मैं बोलूँ violent Gandhi, it is an oxymoron because Gandhi was a huge proponent of non-violence and Gandhi के साथ मैंने violent word use किया. So that is an oxymoron. I hope आपको समझ आ गया हो. इसी तरह water and fire are opposite words, making Jal Laya fire an oxymoron. जलाया पाया जैसे लाया राइट अब। Right means दंगे and how दंगों के टाइम पर पहले बसेस में आग लगाई जाती है एंड देन फायर की वजह से जल लाना पड़ता है, फायर को बुझाने के लिए जल लाना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई जल लाया फायर. गायक, जलाया पाया जैसे लाया राइट अब, why you quiet, talk a little bit more। And notice how he transitions from Hindi to English Right. while he's maintaining those 5-syllable rhymes. ये smooth transition मुझे एक और diss track याद दिलाता है. भाई ने कमाल दे दिया आइंदा मिसाल, और आइंदा के बाद नहीं उठाएंगे सवाल, बेटा आएंगे अटैक मेरे फैन ने संभाल। Amazing stuff. Quiet, talk a little bit more। I'm from the land of the militant wars। Krishna is a Kashmiri Pandit and Kashmir has a lot of militants. Militants वो citizens होते हैं जो अपने goals या objectives
ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक वायलेंट रास्ता चूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में मिलिटेंट्स को टेररिस्ट भी घोषित कर दिया जाता है। South London raised, I'm a killer with bars. कृष्णा ने अपनी स्कूलिंग साउथ लंदन में करी है एंड ही सेज दैट ही किल्स इट विद हिज बार्स यानी लिरिक्स। South London raised, I'm a killer with bars, but you're missing the point like the pyramids are. No cap. ओके, मिसिंग द पॉइंट इन इंग्लिश मीन्स तू असली मुद्दा समझ नहीं रहा है। Right. ही डायरेक्ट्स इट टू मुफार्ड एंड देन लेटर कंपेयर्स इट टू इजिप्शियन पिरामिड्स, मिसिंग द पॉइंट। सो कहा जाता है कि इजिप्शियन पिरामिड्स के ऊपर एक कैपस्टोन लगा होता था जो कि पिरामिड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से पिरामिड्स अपना पर्पस सर्व करते थे। अब वो कौन सा पर्पस था उस पर बहुत सारी थ्योरीज है, इंक्लूडिंग एलियन कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट द पॉइंट इज कि अब जब कैपस्टोन मिसिंग है इजिप्शियन पिरामिड से, तो it has become a mere showpiece and it has missed the point of why it was constructed in the first place. Oh Did you my notice how he God. compared missing the point to Egyptian pyramids? Absolutely brilliant. Fuck जो दी करे कभी रैप न करे, जिनकी ईगो इतनी बड़ी फॉलो बैक न करे। Mufard recently unfollowed artists on Instagram. Mufard ने अपनी reaction क्लैरिफिकेशन देते हुए ये बोला था कि उनका लेबल का डिसीजन है कि वो किसी और आर्टिस्ट को फॉलो नहीं कर सकते। बट हियर कृष्णा सेज कि Mufard की ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये किसी को फॉलो बैक नहीं करते। बैक स्टैप करे कभी टैग न करे। Backstab का मतलब होता है धोखा देना, referring to how Mufard dissed Raftar, who used to consider his elder brother. कभी टैग न करे, इसीलिए इनके साथ सैया डैब न करे। Sayya Sang Dab was a song from Raftar's Now I previous understand album that जिसमें reference. Mufard ने भी फीचर किया था। Right. And Mufard also used this Sayya Sang Dab reference to diss on Raftar in his track Happy Diwala Ravan. कोई किसी का Right. सगा नहीं संग डैब करे सही है कि जब सजनी बेगानी। And now this is the second time when Sayya Sang Dab is being used to diss a rapper. कभी टैग न करे, इसीलिए इनके साथ सैया डैब न करे। Krishna says कि Mufard backstabber है and इसलिए Raftar did not collaborate with Mufard अच्छा। after Sayya Sang Dab. लाया मैं फायर जैसे शबाना आजमी, इसलिए गाने सुन के चले सारे आदमी। शबाना आजमी इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड उन्होंने एक मूवी करी थी उनकी movie नेम्ड Fire। फायर, ठीक है। तो उसमें दो अनमैरिड वुमेन की लेस्बियन रिलेशनशिप की स्टोरी दिखाई गई थी एंड दिखाया गया था कि हाउ द हस्बैंड्स आर एब्सोल्युटली पिस्ड विद दीज वुमेन फॉर दिस एक्ट दैट दे हैव कंडक्टेड। हेंस इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं लाया फायर जैसे शबाना आजमी एंड इसीलिए जले सारे आदमी, आदमी रेफरिंग टू द हस्बैंड इन द मूवी फायर। कृष्णा था यहाँ बेटा तुमसे पहले, और कृष्णा हो गया तुम्हारे बाद भी। जो लॉर्ड कृष्णा है ना, ही वॉज प्रेजेंट बिफोर एंड आफ्टर महाभारत। last line. सिमिलरली कृष्णा भी एमिवे मूफार्ड बियर्ड गैंग से पहले हिप हॉप में थे एंड कृष्णा बोल रहे हैं कि वो एमिवे मूफार्ड और बियर्ड गैंग के बाद भी हिप हॉप में रहेंगे। एंड विद दैट द ब्रेकडाउन इज ओवर एंड द Look at फाइनल the स्कोर po- इज Look at the point counter. What a 64. start to the new year. मैंने अपनी संडे वाली वीडियो में बोला था कि 2020 will see a lot more disses and some high profile beef and Monday को ये गाना ड्रॉप हो गया। Let's see if Mufard responds to this track or not. My prediction, he surely will because he's yet another true beef rapper in the Indian scene. So the Krishna versus Mufard beef has started and let me tell you, मैं दोनों की ही साइड से आपको स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं ना कृष्णा की साइड से हूँ ना मैं Mufard की साइड से हूँ। Correct. मैं हैशटैग इम्प्लांट्स है क्या भी बोलूंगा और साथ ही साथ गरीब के साथ कोलैब भी करूंगा बिकॉज वी आर हियर टू हैव फन, वी आर नॉट हियर टू एंड करियर्स। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू true. टेल यू गाइस एंड विद दैट इट्स I टाइम टू mean- एंड द वीडियो। अगर आपको मेरा Yes. काम अच्छा लगता है तो डू चेक आउट माई मर्च टू सपोर्ट दिस चैनल, मर्चेंडाइज दैट स्पीक्स अबाउट माई आइडियोलॉजीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ दिस चैनल। लिंक Opinion की आपको बस्ती डिस्क्रिप्शन वाला। में मिल जाएगी। ऑल्सो अगर आपको देसी हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो Wow. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस। I'll pause it here. Wow, just fantastic. How am I not subscribed to him? Let me subscribe to his channel first. रोहन के चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। Wow, fantastic. I mean, look at the points counter only. It's like 64 because there's just so many cool references and I see now I am seeing the lyrics in a whole new light. आप अगर पहली बार ऐसे भी सुनो, like if you see my reaction, I already loved the song and of course the deep disses and the deep references I did not get at that point of time. But here now after watching this, I am appreciating the lyrics in a whole new level, and I think for me Krishna is one of the best lyrical rappers out there. जबकि मैंने इतने ये भी नहीं किया है, अभी तो एक्सप्लोर मैंने करना स्टार्ट किया है, but Krishna is definitely someone who has impressed me because when I started reacting to desi hip hop, I was wondering, okay, I don't know पसंद आएगा कि नहीं आएगा, let's see, let's explore it because if I don't like it then I'll probably
tell it in my reaction only that this is not my jam, and I'll probably not react to any hip hop stuff. But then I started with Brother V. I'm sorry, you guys corrected me. Thank you so much. I used to call him as Brother V, but it's Brother V. So I started with him, and I absolutely fell in love with his style. And slowly, then I got into Krishna, and I think now I will create a separate Desi hip hop playlist. I'll create a separate Desi hip hop playlist. So for all of the viewers who are just want to watch the Desi hip hop reactions, you can just go to that playlist and you won't have to search for all the videos. So I'll do that after I shoot this. That's what I've decided. But just talking about first Rohan, I mean, I don't know how much time like it would have taken him to break down and look at the lyrics, because I feel that a lot of time and effort goes into that. So I always first want to appreciate the effort that Rohan has taken to break down the lyrics. It's just fabulous. Secondly, to Krishna, my god, the aggression and the savagery that this guy has, and आप लोगों ने तो बोला है कि अब तो आगे आगे देखो होता है क्या. Probably Maa Kasam is, you guys have already hyped me up for Maa Kasam, because I think that's the last track for this beef, and I mean, you guys have already told me like that's probably gonna blow my mind away. So yeah, I'm gonna go in the order and see. I mean, क्या होता है माँ कसम में, ऐसा क्या लिख दिया उसने भाई कि सब पागल हो गए हैं. So I am already excited to go through this entire like list of songs and then reach the end. So yeah, and a lot of you told me that it's gonna be brutal. So it's fine, because if the lyrics or anything makes me uncomfortable while watching it, so वो तो मेरी शक्ल पे ही दिख जाएगा, and I'll let you know also that okay, I was a bit uncomfortable watching this song and whatever, like this line made me a bit uncomfortable. But hip hop is supposed to be savage and unapologetic and without any filter. It's supposed to be raw. So I know that. I go into the reaction with that frame of mind only कि हाँ, मतलब it's going to be brutal and nobody is going to hold back anything. यहाँ पे मतलब कोई खातिरदारी नहीं चल रही है. So my favorite part was, I think all the entire song was great, but couple of things which I really liked lyric wise is when he was talking about कि उन्होंने rhyming like पांच जगहों पे rhyming, the way he has rhymed all the words that he does regularly on his raps, which I really liked and something that he highlighted. Second is जो उन्होंने diss किया अपने opponent के flow में ही, that was amazing. I think that's really genius. That is such a sublime way to diss somebody and tell कि yeah, listen, तुम्हारे अखाड़े में आके तुम्ही को मैं मार रहा हूँ. That's the feeling that you give when you copy somebody's flow and actually do make your rap also on that. Then the fire reference, that was great, but I think the best reference was the Hindu mythology reference to Krishna, Lord Krishna का जो उन्होंने पूरा reference लिया. I think that was fantastic. It was just, I mean, that's some really intelligent writing, really intelligent, well thought out lyrics over there. So yes, that was my reaction, guys. अगर you think that, probably I'm pretty sure Rohan didn't miss out on anything, but if you think that no, there is more into it, which is your interpretation as a viewer, please do let me know. And yeah, that was my reaction for the lyric breakdown of Untitled. I thoroughly enjoyed it, and really Rohan is amazing. I think rappers से ज़्यादा तो ये खत्म होते I think I'll become a fan of Rohan only. So yeah, that was my reaction for today. Do share in your thoughts in the comment section below, and I'll sign off now, and I'll see you soon on my next video. Bye bye.